بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں باغوں کا شہر زہریلی ہواؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ سموگ عروج پر لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 185 ریکارڈ کیا گیا۔ راوی روڈ پر آلودگی کی شرح 333 تک جا پہنچی۔ فضائی معیار خطرناک حد تک متاثر، ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت جاری۔ شہر میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے۔ لاہوریوں کے لیے فضا زہر آلود بن گئی۔ صبح کے وقت شہر فضائی آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ ملک بھر میں لاہور کا پہلا نمبر رہا۔ شہر کی مجموعی AQI شرح 253 ریکارڈ کی گئی۔ بیدیاں روڈ پر آلودگی کی شرح 455، برکی روڈ پر 419 AQI کی شرح ریکارڈ کی گئی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں آلودگی کی سطح 338، شالیمار پر 316% فضا متاثر ہوئی۔ سید مراتب علی روڈ پر AQI 292، پاکستان انجینئرنگ سروس پر 285 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر کی فضا دھند اور اسموگ کے باعث متاثر ہے۔ شہریوں کو آنکھوں اور سانس کی تکلیف کا سامنا ہے۔ ماہرین نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ فضائی آلودگی کم نہ ہوئی، لاہور رات کے اوقات میں آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 221 ریکارڈ کیا گیا۔ آب و ہوا انتہائی موثر۔ لاہور مال پر سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 432 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن 297، سول سیکریٹریٹ پر شرح آلودگی 270 ریکارڈ کی گئی۔ یونیورسٹی آف لاہور 251، ملن شاہ ٹاؤن میں AQI 229 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید علاقوں کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں حسنین اولگ سے۔ جی حسنین۔ حکومت کے لاکھ جتن کے باوجود بھی شہر کی جو آلودگی ہے اس میں کمی نہیں آ سکی۔ آیا کہ حکومت کی جانب سے اینٹی سموک گنز کا استعمال کیا گیا، شہر کے مختلف علاقوں میں چھڑکاؤ اور مکینیکل واشنگ کی گئی، لیکن پھر بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں سدھار نہیں آ سکا اور لاہور جو ہے وہ بدستور ٹاپ پر جا رہا ہے۔ اور آج لاہور جو دنیا کے آلودہ شہر ہیں ان کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 221 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو شہر کی آب و ہوا ہے وہ خطرناک حد تک مضر صحت ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ لوئر مال میں، جس کی جو شرح ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور 432 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں علامہ اقبال ٹاؤن میں 297 ہے، سول سیکریٹریٹ میں 270، یونیورسٹی آف پنجاب میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کی گئی ہے اس کی جو شرح ہے وہ 251 ہے۔ ولنشیا ٹاؤن میں 229 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیدیاں روڈ پر جو شرح آلودگی ہے وہ 229 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح صدر کینٹ میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 200 ہے۔ عسکری 10 میں 183، مال روڈ پر 159 ہے اور جنریشن پرائیویٹ لمیٹڈ میں جو شرح آلودگی ہے وہ 136 ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو شہری ہیں ان کو احتیاطی تدابیر۔ جی ٹھیک ہے حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ آٹے کی ترسیل کو پھر بریک، کریانہ دکانوں پر سرکاری آٹے کی قلت، اکثر دکانوں پر 10 اور 20 کلو کے تھیلے نایاب ہو گئے۔ حکومت نے 10 کلو تھیلے کی قیمت 905 اور 20 کلو کے نرخ 1808 روپے مقرر کر رکھے ہیں، جبکہ سبزیاں 20 سے 30 روپے کلو مہنگی۔ ٹماٹر 450 روپے کلو تک فروخت۔ برائلر گوشت ایک دن میں 29 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ گوشت 424 روپے کلو ہو گیا، جبکہ انڈے 327 روپے درجن ہو گئے۔ صارفین سستے آٹے کی تلاش میں خوار ہونے لگے۔ شہر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں کریانہ دکانوں اور جنرل سٹورز پر حکومتی نرخوں والے آٹے کی قلت سنگین ہو گئی۔ شہر کے شمالی علاقوں سلامت پورہ، فتح گڑھ، تاج پورہ، ہربنس پورہ، GT روڈ، دروگا والا کے اطراف کی آبادیوں میں سستا آٹا کریانہ دکانوں پر دستیاب نہیں۔ حکومت نے 10 کلو آٹے کی قیمت 905 اور 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت 1808 روپے مقرر کر رکھی ہے۔ سستا آٹا دستیاب نہ ہونے سے صارفین نجی کمپنیز یا فلور ملز کا 15 کلو والا مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب برائلر گوشت 29 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ برائلر گوشت 424 روپے کلو پر فروخت ہوا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر زندہ فارم ریٹ 265، تھوک 279، پرچون 293 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کم اجرت کمانے والا چھوٹا اور بڑا گوشت خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ حکومت مرغے کے گوشت کی قیمت تو کم از کم کنٹرول کرے۔ گراں فروشوں نے سبزی بھی عوام کی پہنچ سے دور کر رکھی ہے۔ تمام سبزیوں کے قیمتوں میں 20 سے 30 روپے کا فرق ہے۔ ٹماٹر کا سرکاری نرخ 170 روپے ہے، جبکہ بازار میں 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ آلو سرکاری نرخ 80، جبکہ بازار میں 100 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اشیاء ضروریات کی قیمتیں سرکاری نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ، سپتمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ پر 36 پیسے یونٹ کمی لائی جائے گی۔ نیپرا نے درخواست پر سماعت مقرر کر دی۔ پنجاب حکومت کی بھی بجلی 2 روپے سے 73 پیسے یونٹ سستی کرنے کی تیاریاں، معاہدے کے لیے اسمبلی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو بھجوا دی گئی۔
बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने भी बिजली की कीमत ₹2.77 फी यूनिट के हिसाब से कमी लाने के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फी यूनिट 36 पैसे कमी की दरखास्त दायर की है, जिस पर नेपरा ने 29 अक्टूबर को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा के फैसले पर नवंबर में सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा सकेगा। मौसम में तब्दीली की वजह से बिजली की डिमांड में कमी हुई, जिस पर महंगे दामों बिजली की पैदावार कम की गई। बिजली की पैदावारी लागत कम होने पर सार्फिन को रिलीफ देने की दरखास्त की गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बुनियाद पर टैरिफ में कमी लाने की समरी तैयार कर ली। टैरिफ में तब्दीली से सार्फिन को 27 अरब रुपए बिजली के बिलों की मद में बचत होगी। टैरिफ तब्दीली की बुनियाद पर बिजली की कीमतों में कमी के लिए पंजाब हुकूमत ने विफाक से रुजू कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के साथ मुआहिदा करके बिजली की कीमत में कमी की जाएगी। जराये के मुताबिक मुआहिदे के लिए समरी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भिजवा दी गई। कायदे-आज़म सोलर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार पर कीमतों में कमी लाई जा सकेगी। पंजाब काबीना पावर हाउसेज से बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे चुकी है। अस्पतालों में अद्वियात के इजाफी 15 अरब की डिमांड। महकमा खजाना के एतराज अखराजात का हिसाब मांग लिया। अस्पतालों को 8 अरब 70 करोड़ दिए, मजमूई तौर पर 22 अरब दिए जा चुके हैं। महकमा खजाना का इस्तफसार, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम खत्म होने से अस्पतालों की आमदन बंद हो गई। महकमा सेहत का मौक़िफ़। अस्पतालों में अद्वियात के लिए इजाफी फंड्स कम पड़ गए। महकमा खजाना ने अद्वियात के लिए इजाफी फंड्स पर एतराजात उठा दिए। तमाम अस्पतालों से अद्वियात के बजट के इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों को माली साल 2024-25 के दौरान 8.7 अरब रुपए फ्राहम किए जा चुके हैं। ताहम मजीद 15 अरब रुपए की डिमांड को महकमा खजाना ने गैर जरूरी करार दिया। महकमा खजाना का कहना है कि लोकल परचेज पर इन्हिसार के बायस वाजबात में इजाफा हुआ है। हालांकि 22 अरब रुपए के इजाफी फंड्स पहले ही दिए जा चुके हैं, जिससे सूबाई बजट पर दबाव बढ़ गया। दूसरी जानिब महकमा सेहत का मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम खत्म होने के बाद सरकारी अस्पतालों की आमदन रुक गई, जबकि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद मजीद फंड्स की जरूरत है। अंदरून शहर में 4 अरब 30 करोड़ के तरक्याती मंसूबे। टीपा दाता दरबार और भाटी चौक की रीमॉडलिंग करेगा। LDA रेलवे गोल चक्कर से आज़ादी चौक तक सड़क रीमॉडलिंग असर नो करेगी। LDA इंजीनियरिंग विंग और टीपा गवर्निंग बॉडी से मंजूरी लेगा। दाता दरबार और भाटी चौक की रीमॉडलिंग होगी। रेलवे गोल चक्कर से आज़ादी चौक तक सड़क और रीमॉडलिंग असर नो की जाएगी। अंदरून शहर में 4 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबे LDA इंजीनियरिंग विंग और टीपा गवर्निंग बॉडी से मंजूरी लेगा। टीपा 2 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से दाता दरबार और भाटी चौक की रिमॉडलिंग करेगी। टीपा प्रोजेक्ट में ट्रैफिक सर्कुलेशन और पार्किंग को बेहतर बनाएगा। LDA इंजीनियरिंग विंग रेलवे राउंड अबाउट से आज़ादी चौक तक सड़क और रिमॉडलिंग असर नो करेगी। 2 अरब इंजीनियरिंग वन ऑन सोर्स LDA से करेगा। दोनों प्रपोजल्स को LDA गवर्निंग बॉडी से मंजूर करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब अंदरून शहर के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी दे चुकी है। LDA के मंसूबे ऑन सोर्स फंड से करवाने की मंजूरी गवर्निंग बॉडी से करवाएगी। सैलाब से निपटने के लिए नया प्लान तैयार करने का हुक्म जारी किया गया है। तमाम महकमे 30 अक्टूबर तक मंसूबे जमा करवाएंगे। PDMA ने मुख्तलिफ महकमों से फ्लड प्लान तलब कर लिया। नया फ्रेमवर्क 8 माह से 7 साल तक के इक़दामात पर मुश्तमिल होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे में सैलाब से निपटने और कुदरती आफात के असरात कम करने के लिए नया जामी मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी महकमे अपने अपने दायरा इख्तियार में फ्लड मैनेजमेंट, बचाव और बहाली के मंसूबे तैयार करके 30 अक्टूबर 2025 तक जमा करवाएंगे। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने महकमों को खत लिख दिया है। मुरास्ते के मुताबिक हर महकमा अपना अलहदा मंसूबा बनाएगा जो कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती इक़दामात पर मुश्तमिल होगा, जिनकी मुद्दत 8 माह से 7 साल तक होगी। फ्रेमवर्क में पायदार तरक्की, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम और अवामी आगाही प्रोग्राम शामिल किए जाएंगे। PDMA ने कहा है कि ये नया निज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के मुताबिक तैयार किया जाएगा। फ्लड प्लान 30 अक्टूबर को सीनियर सूबाई वज़ीर की सरबराही में इजलास में पेश किया जाएगा। गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। गैर कानूनी सिलेंडर वाली गाड़ी गैर महफूज करार दी जाएगी। सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन ने SOPs मंजूर कर लिए। गाड़ी का मौके पर चालान और कब्जे में लेने का हुक्म दिया गया है।
गैर मेयारी LPG सिलेंडर्स वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शामत आ गई। गैर कानूनी LPG सिलेंडर वाली गाड़ी गैर महफूज और अनफिट करार दी जाएगी। गाड़ी मौके पर चालान और कब्जे में लिए जाने का हुक्म दे दिया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन की तजदीद सिलेंडर हटाए बगैर नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत बंद भी हो सकेगी। गैर मेयारी और गैर कानूनी सिलेंडर जब्त किया जाएगा। मुताबिक चालान पर पाबंदी, एक गाड़ी पर एक ही रोज में एक चालान किया जाएगा। सिलेंडर्स के दोबारा इस्तेमाल पर सख्त जुर्माने और कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी सिलेंडर्स इस्तेमाल और फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी और रोजाना रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। गफलत पर मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। आफ्टरनून स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट में कमी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों का ताज़ा डाटा मांग लिया। डाटा 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात का मांगा गया है। DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला लिख दिया। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सुस्ती के बायस 2 माह बाद भी मैट्रिक इम्तिहान में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा का डाटा मुहैया ना किया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मातहत आफ्टरनून स्कूल में मुसलसल बच्चों की एनरोलमेंट में कमी होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों की तादाद का ताज़ा डाटा मांग लिया। डाटा 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात का मांगा गया है। मज़कूरा डाटा 50 से ज़ायद तादाद वाले स्कूलों से मांगा गया है। DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला लिख दिया। डाटा फराहम न करने वाली अथॉरिटीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्ती के बायस 2 माह बाद भी मैट्रिक इम्तिहान में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाला असातिज़ा का डाटा मुहैया न किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मैट्रिक में खराब कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान का डाटा मांगा था। किसी भी एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से डाटा फराहम न किया गया। मैट्रिक में खराब नताइज देने वाले असातिज़ा के खिलाफ पीटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को वार्निंग जारी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर डाटा स्कूल एजुकेशन को भिजवाया जाए, बसूरत दीगर महकमाना कार्रवाई होगी। प्रॉपर्टी टैक्स के गैर तशखीस शुदा यूनिट सिस्टम से बदस्तूर गायब। नए यूनिट्स की तशखीस और एडिशनल के यूनिट बनाने का फैसला। हर रीजन में डिप्टी डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर प्रॉपर्टी यूनिट्स को चेक करेगा। DG एक्साइज ने नए यूनिट के काम के लिए असम्बली सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम गैर तशखीस शुदा यूनिट्स को सिस्टम में शामिल करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल नया यूनिट बनाया जाएगा। हर रीजन में डिप्टी डायरेक्टर रैंक का अफसर प्रॉपर्टी यूनिट्स को चेक करेगा। माहाना गैर तशखीस शुदा यूनिट्स की रिपोर्ट तैयार करके DG ऑफिस को भिजवाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर्स को बेहतर कारकर्दगी पर इनाम भी दिए जाएंगे। गुज़श्ता 3 माह में अब तक 2 लाख से ज्यादा नए टैक्स DG एक्साइज की खसूसी टीम की वर्किंग से सिस्टम में शामिल हुए हैं। 3 माह में टैक्सेबल यूनिट्स की तादाद 24 लाख से बढ़कर 26 लाख हो गई है। DG एक्साइज ने नए यूनिट के कयाम के लिए असम्बली सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी है। नए यूनिट्स के आगाज से मजीद यूनिट्स शामिल हो सकेंगे। खालिक नगर में वाक़या मस्जिद बानो सतार के अतराफ सीवरेज सिस्टम नाकारा। मस्जिद के अतराफ गंदा पानी जमा होने से इलाका मक्किनों को मुश्किलात का सामना। मस्जिद से मुल्हिका मदरसे के तलबा को खुले मैनहोल की वजह से दुश्वारी हो रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। रोही नाले पर वाक़या रिहायशी आबादी खालिक नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और खालिक नगर की मस्जिद बानो सतार के अतराफ दरीना सीवेज मसाइल के बायस न सिर्फ इलाका मकीनों बल्कि मस्जिद में आने वाले नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। मस्जिद के अतराफ सीवेज मसाइल के बायस सीवेज का जो पानी है वो जमा है और बिल्कुल मस्जिद के सामने एक खुला मेन होल है जिससे सीवेज के पानी का जो अखराज है वो 24 घंटे जारी रहता है, जिससे माहौल जो है वो ताफुनज़दा हो चुका है और इस ताफुनज़दा माहौल में इलाका मकीन नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन मौजूद भी हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये कब से ये मसाइल दरपेश हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। मसाइल तो ये कब के हैं, हमने मतलब कितनी बार नोटिस भी किया है, उनको कहा है कि ये बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि नमाजी हज़रात जाते हैं तो उन बाज़ औक़ात यहाँ छींटे पड़ते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं और वज़ू भी टूट जाता है। बहुत ज़्यादा मसला है। हमने कितनी बार कहा है उनको कि शिकायत किया है लेकिन कोई नहीं आ रहा। हमारी यही इलाके से अपील है क्योंकि अब गंदगी की वजह से अंदर मस्जिद में मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उन बदबू की वजह से उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द इस सेवरेज के काम को किया जाए, दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की बात आपने सुनी है जिनका ये कहना है कि इस मस्जिद के साथ एक मदरसा भी है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए, नाज़रे के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर बदबूज़दा माहौल के बायस उन्हें भी मुश्किलात का सामना रहता है। मेरे कब के मनाजिर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से मस्जिद के बिल्कुल सामने सीवेज का जो पानी है वो जमा है। सीवेज का जो पानी है वो मेन होल से मुसलसल यहाँ पर बहता रहता है, जमा रहता है और मस्जिद के तरफ की जो सड़क है, गलियाँ हैं, ये भी। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका।
हैदरो टाउनशिप तरक्याती काम ज़ेर इल्तवा आगे गढ़ों में गिरने लगे। कारोबारी हजरात कई परेशानियों से दो चार हैं। शहरियों की इंतजामिया से मसाइल के सद्देबाब की अपील सामने आई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ टाउनशिप हैदर रोड पर। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर तमाम दुकानदारों को, तमाम कारोबारी हजरात को दरपेश मुश्किलात की, तो सबसे बड़ी मुश्किल जो इनको दरपेश है वो आजकल यहाँ पर तरक्याती काम का होना है, जिसके सबब जो है वो यहाँ पर तमाम अहले इलाका जो है वो शदीद परेशान है। इंतज़ामिया से दुहाई देते नज़र आ रहे हैं कि खुदारा यहाँ पर जो तरक्याती काम शुरू करवाया है उसको ख़त्म भी करवा लें, क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम ना होने के सबब जो है वो ना सिर्फ गहरे शगाफ पड़ गए हैं, घड़े पड़े हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ सीवरेज के पाइप भी बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर सीवरेज के नाकिस निज़ाम के सबब बदबू के साथ साथ लोगों का गिरना जो है वो मामूल बन गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस हवाले से शिकायत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं अहले इलाका, उनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि कितने अरसे से इन तमाम तर मसाइल को जो है वो आप देख रहे हैं और क्या क्या मसाइल का सामना है? बॉस, इसको तो 1.5-2 माह हो गए हैं। 2-3 दिन पहले भी फैमिली गिरी है, बच्चे गिरे हैं, बड़ी मुश्किल इनको हमने निकाला है। कल का वाक़या है कि यहाँ पर बच्चे गिरे हैं, पूरी फैमिली गिरी है? जी बिल्कुल गिरे हैं। आप मुझे बताएं कि बच्चे जब यहाँ पर गिरे, फैमिली गिरी, तो किस तरह उनको बाहर निकाला, किस तरह रेस्क्यू किया? उन्हें भाईजान पकड़ के बाहर निकाला, सारे पानी में डूबे हुए थे वो तकरीबन, यहाँ से पकड़ के उनके पैसे भी गिर गए यहाँ पे, उनके पानी के अंदर। यहाँ पे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ पे तबाही फिर इतनी मिट्टी उड़ रही है, वो छोड़ के भागे टोया मार के यहाँ पे। अब हम बहुत परेशान हो रही है। यहाँ पे देखें यहाँ हाल क्या बना हुआ, रास्ता देखें आप क्या इन्होंने यहाँ पे। यहाँ पर तरक्याती काम करने आए थे, वादा क्या किया था कि कब तक सड़क जो है वो बन जाएगी? अब 2-3 महीने में क्लियर कर देंगे। इस बात को रबी अव्वल से पहले की बात है, आप हिसाब लगा लें कितना टाइम गुजर गया इस बात को। रबी अव्वल से 2 महीने पहले का काम शुरू किया वो उन्होंने, वो अभी तक देखे हाल के काम छोड़ के आते हैं, घंटा लगाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं वो। यानी आज 5वां महीना चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। यही जो है वो यहाँ पर तमाम तर मसाइल हैं। सब लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर सीवरेज के इंतहाई नाकिस निज़ाम के सबब। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। बरकत मार्केट उस्मानी रोड पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से ख़राब हैं। स्ट्रीट लाइट्स के बंदिश के बाद राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदियाना से। जी आदिया। में स्ट्रीट लाइट का मसला ताहाल हल नहीं हो सका और अहम और बड़ी शाहराहों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स ख़राब और बंद रहना मामूल बन चुका है। मौजूद हैं हम इस वक्त वो रोड जो कि बरकत मार्केट से जिना हॉस्पिटल की जानिब जाता है, और मेरे राइट साइड पर जामे पंजाब है, और इस रोड के ऊपर जो है वो तारीकी छाई हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पोल मौजूद हैं, लाइट्स भी ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से सड़क अंधेरे में डूबी हुई है। और ख़ास तौर पर रात के औकातकार के हवाले से बात करें तो अंधेरे की वजह से यहाँ पर वारदातें होना भी जो है वो मामूल बन चुका है, जबकि जो रोशनी है वो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की है जो कि यहाँ से गुज़र रही हैं, या हेडलाइट्स की रोशनी है, जबकि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद पड़ी हैं। और यही इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि दीगर मनसूबों के ऊपर, तरक्याती मनसूबों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इंतज़ामिया इस जानिब भी तवज्जो दे ताकि सड़कों की तारीकी को ख़त्म किया जा सके और लाहौर की जो रोशनियाँ जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। तालिबात, असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमिन की ज़हनी सेहत बारे होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में हैप्पी सेंटर का कैंप किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा और फैकल्टी ने शिरकत की। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में हैप्पी सेंटर का कयाम सूबाई वजीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा और फैकल्टी ने शिरकत। वजीर सेहत का कहना था अद्वियात से ज्यादा असर काउंसलिंग में होता है। महकमा हेल्थ तालीमी इदारों को सेहत से मुतल्लिक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की इजाज़त से हम जल्दी इस पे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आएंगे, ताकि जो बच्चे साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों को एक चांस दिया जाए कि वो अस्पतालों में विजिट किया करें रेगुलरली, और जो पेशेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग किया करें। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा ने आगाह किया कि सेंटर इंटरनेशनल फंडिंग से बनाया गया। तालबात, फैकल्टी और मुलाजमीन की ज़हनी सेहत पर तवज्जो दे रहे हैं। इसका जो मकसद है इस सारी लेबॉरेटरी का, इस सेंटर का, कि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस उनको करना पड़ता है, जैसे वो स्टडीज़ में आ जाते हैं, कभी किसी को डिप्रेशन हो जाती है, कभी किसी को और कोई मसले हो जाते हैं। तो ये जो सेंटर है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि हमने लोगों को खुश रखना है, लोगों की खुशहाली के लिए है ये कि वो आगे बढ़ें। दौरान तकरीब ज़हनी सेहत से मुतल्लिक पैनल डिस्कशन हुई। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था IMF की सख्त शराइत के बावजूद मुल्क को बहरानों से निकाला। माशी तंगदस्ती के बावजूद ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को नाको चने चबवाए। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42।
यूसीपी में इमेजिन पाकिस्तान 2030 सेमिनार छोटे सूबों की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का खिताब। बोले, दुनिया कैसे चल रही है और हम कैसे चल रहे हैं। मुल्क की 25 करोड़ आबादी मगर सूबे सिर्फ 4 हैं। बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इमेज पाकिस्तान 2030 सेमिनार मुनक्कद हुआ। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने सदारत की। सेमिनार में छोटे सूबों की ज़रूरत, गवर्नेंस और अवामी फलाह के लिए इख्तियारात की तकसीम पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर इश्तियाक, डॉक्टर अहमद बिलाल, अहमद नज़ीर वराइज, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट ने पैनल में शिरकत की। मियां आमिर महमूद का कहना था कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है मगर सूबे अब भी सिर्फ 4 हैं। दुनिया के कई ममालिक में दर्जनों सूबे मौजूद हैं। हमारे 4 सूबे हैं, आप सब जानते हैं। उसमें एक पंजाब है विच इज़ लाइक 52% ऑफ पाकिस्तान, और दुनिया की कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है आज जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सब फेडरेटिंग यूनिट से बड़ा हो। वो सिर्फ हम हैं। 4 में से 2 सूबे, एक आबादी के लिहाज से और दूसरा रकबे के लिहाज से गवर्नेबल भी नहीं है, मैनेजेबल भी नहीं है। मियां आमिर महमूद का कहना था बेहतर गवर्नेंस के लिए हर डिवीजन को सूबा बनाना नागजीर है ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज के तयन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी कि किसकी बाउंड्री कहाँ पे होगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज़ है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। अगर आप एक डिवीजन को सूबा बनाते हैं तो आपके पास कमिश्नर मौजूद है जो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, और आरपीओ मौजूद है जो आईजी पुलिस बन सकता है, और उनके नीचे पूरी गवर्नमेंट की एक जो टियर है वो मौजूद है। आपको कुछ भी उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सदर पलडाट अहमद बिलाल महबूब का कहना था मजीद सूबे बनाने की बजाय मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए तो मुल्क की गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। बड़ा सबब यह है कि हमने यहाँ पे मकामी हुकूमतों का निज़ाम कभी चलने नहीं दिया। सही मानों में 10 साल हो गए हैं कि यहाँ पे मकामी हुकूमतों का इलेक्शन ही नहीं हुआ। शुरा ने इत्तफाक किया कि इख्तियारात की तकसीम और मजबूत अदारे ही तरक्की की जमानत हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट और अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने महकमा औकाफ के इश्तराक से हज़रत मियां मीर के तारीखी दरबार पर महफिल समा का इनेकाद किया। मारूफ कवाल, महबूब अहमद, आज़ाद अल मारूफ, पप्पू मियां ने शिरकत की। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने महकमा औकाफ के इश्तराक से हज़रत मियां मीर के तारीखी दरबार पर महफिल समा का इनेकाद किया। रूहानी महफिल हर जुमेरात को 4 से 10 बजे तक मुनक्किद की जाती है। महफिल में मारूफ कवाल, महबूब अहमद, आज़ाद अल मारूफ, पप्पू मियां ने शिरकत की। हाफिज अहमद अजीम मियां और कामरान यूसुफ मियां रूहानी कलाम से हाजिरों को महसूस करते हैं। वॉल सिटी के मुताबिक महफिल समा का मकसद लाहौर की सूफियाना रवायात और सकाफती विरसे को उजागर करना है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। लाहौर जहां दिन की गहमा गहमी खत्म होती है वहां रात एक नई जिंदगी लेकर आती है। शहर के दिल मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में रात ढलते ही न्यून लाइट्स जगमगा उठती हैं और कैफेज अपनी मुनफरिद चमक से लाहौर की रातों को नया रंग दे देते हैं। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लाहौर का जदीद चेहरा है। रात के वक्त रंग, रोशनी और मौसीकी एक नया माहौल पैदा करते हैं। जदीद तर्ज के कैफेज अपनी दिलकश लाइटिंग, ओपन एयर डिजाइन और डिजिटल मेन्यू सिस्टम के साथ शहरियों के ज़ौक को नया रुख दे रहे हैं। अब कैफे सिर्फ चाय या कॉफी की जगह नहीं रहे, ये तजुर्बा गाहें बन चुके हैं जहां नौजवान न सिर्फ बैठकर गुफ्तगू करते हैं बल्कि लाइव म्यूजिक, डिजिटल आर्ट और 3D लाइट से लुत्फानंदोज होते हैं। कराची से आया हमारा ग्रुप आया है, तो हम लोग स्पेशली जो है लाहौर इसी वजह से एक्सप्लोर करने आए थे। जो नया लाहौर इन्होंने बनाया है तो काफ़ी मतलब हमें अच्छा लगा है एज़ कम्पेयर टू कराची, क्योंकि इस तरह की जगहें देखने को सिर्फ इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो स्पेशली इस बार लाहौर हमें आना पड़ा और डिजिटल मेन्यूज़ यूज़ किया हम लोगों ने। कई रेस्टोरेंट्स में अभी डाइन इन भी किया है। बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हर चीज़ एक वेल ड्रेस्ड है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, खास तौर पे ये इलाका। कैफे मालिकान का कहना है कि हमने जदीद लाइटिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम्स शामिल किए हैं। हमारी भी कोशिश है कि अपने क्लाइंट्स को एक पुरसकून माहौल दिया जाए और उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज और अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। हमने अपने मेन्यू को डिजिटलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी प्लेस है कि आप लोग आएँ, अपना टाइम स्पेंड करें और एंजॉय करें। मेन बुलेवार्ड का ये नया रूप न सिर्फ लाहौर की माशरती जिंदगी में तब्दीली लाया है बल्कि नौजवानों के लिए एक नया इज्तिमा बन गया है।
قومی اسمبلی کے حلقہ NX 29 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان کا UC 105 کھاڑے کا دورہ، اہل علاقہ سے ملاقات کی۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ حلقے میں سیوریج کے میگا پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس سے حلقے کی عوام کے درینہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ملک شبیر کھوکر، مختار شاہ، علی رضا کمبو، نور بٹ، محمد عبداللہ اور وسیم عباس سمیت دیگر موجود تھے۔ پنجاب بار انتخابات 2025 کے امیدواران کو نامزد کرنے کی تقریب، شہر کے معروف وکلاء اور لاء اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ سینئر لیگی رہنما شفقت علی بٹ کی رہائش گاہ پر بیرسٹر شعیب شفقت بٹ اور محمد زہیب امجد بٹ کی جانب سے تقریب کی میزبانی کی گئی۔ امیدوار ممبر پنجاب بار لاہور سیٹ ملک مقصود کھوکھر، سمیرہ حسین، مدثر بٹ، احسان نواب ناظم، عباس علی چدر، عدیل احسان، فیضان الحق ڈار کو نامزد کیا گیا۔ امیدوار ممبر پنجاب بار مظہر محمود، عمر حیات بھٹی، عرفان ناصر چیمہ، عزیز بھٹی، عرفان صادق تارڑ بھی نامزدگان میں شامل ہیں۔ امیدوار صدر لاہور بار ادیب اسلم، امیدوار نائب صدر میاں طاہر منیر، سیکرٹری شعیب اشرف بھٹی نامزد ہوئے۔ سیاسی شخصیت زہیب شوکت بٹ اور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ لاہور میاں بابر اشرف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ DHA ریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن لائن گروپ کی طرف سے CEO اتھار ٹاؤن شجاع اللہ خان کے اعزاز میں شائع کا اہتمام کیا گیا۔ صدر انجمن تاجران DHA بورڈ شاہان شیخ، گلریز افتخار اور عمر مختار سمیت ریل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں اتھار ٹاؤن کے SSP اور ABG گروپ کے ممبران اور انجمن تاجران کے عہدیداران نے شرکت کی۔ صدر انجمن تاجران DHA بورڈ شاہان شیخ، بلال مرزا، اسد مرزا، رفت علی، شیخ فاروق، محمد شعیب، سہیل، نواز غنی، ملک خضر بھی شریک ہوئے۔ محمود خان، احسن فاروق، فصیح ہاشمی، راحیل احمد، چودھری کامران نذیر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں چھاتی کے کینسر کے عالمی مہینے کے موقع پر جنرل کیڈر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے تعاون سے اہم سیمینار کا انعقاد کیا۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسعود، ڈاکٹر مسعود شیخ، عقیلہ شیرازی، ڈاکٹر کائنات سمیت دیگر نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد بریسٹ کینسر کی جلد تشخیص اور مؤثر علاج کے حوالے سے عوام میں آگاہی بڑھانا ہے۔ سیمینار میں ماہرین طب نے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں خواتین کو خود معائنہ کرنے کے طریقے اور وقت پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایونٹ آرگنائزر ڈاکٹر کائنات شوکت کا کہنا ہے کہ اس قسم کی آگاہی مہمات معاشرتی سطح پر بیماری کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب یہاں پر بات کریں سروسز اسپتال کے شعبہ نیورولوجی میں دماغی امراض کی تشخیص اور علاج پر ورکشاپ۔ ڈاکٹر عدنان اسلم کہتے ہیں دنیا میں ہر 2 سیکنڈ میں فالج کا مریض رپورٹ ہو رہا ہے اور ہر 6 سیکنڈ میں ایک موت ہو رہی ہے۔ سروسز اسپتال کے شعبہ نیورولوجی میں دماغی امراض کی تشخیص و علاج پر نوجوان نیورولوجسٹس کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ شعبہ نیورولوجی کے سربراہ ڈاکٹر عدنان اسلم، شعبہ میڈیسن کے سربراہ پروفیسر آفتاب نے خصوصی لیکچر دیا۔ ڈاکٹر عدنان اسلم نے کہا دماغی و پٹھوں کے امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں ہر تیسرا شخص کسی اعصابی و دماغی مرض کا شکار ہے۔ ہر 3 میں سے ایک فرد دماغی یا اعصابی پٹھوں کے مرض یا نسوں کے مرض میں مبتلا ہے، یعنی ہر دوسرا آدمی یہ کمپلین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ایک پین پاکستان کورس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی ورکشاپ ہے جو ہم پورے پاکستان میں کریں گے۔ اس کا پہلی سیریز جو ہے جو آج انوگریشن پروفیسر زہرا خانم جو کہ پرنسپل سمز ہیں انہوں نے کی۔ ڈاکٹر عدنان اسلم نے کہا کہ دنیا میں ہر 2 سیکنڈز میں فالج کا ایک مریض رپورٹ ہوتا ہے اور ہر 6 سیکنڈ میں فالج سے ایک موت رپورٹ ہو رہی ہے۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک سٹروک کا پیشنٹ رپورٹ ہو رہا ہے، ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک سٹروک کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں سٹروک کے مریضوں کی تعداد ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے۔ اب ان بیماریوں کا طریقہ علاج اور ان کو ڈائیگنوز کیسے کیا جائے، ان کی تشخیص کیسے کی جائے اور ینگ نیورولوجسٹ اور جو ہمارے دوسرے میڈیکل کیئر فیسلٹی کے لوگ ہیں ان کو کس طرح ٹرین کیا جائے کہ وہ بہتر طریقے سے اس کو ڈائیگنوز کر سکیں، ان بیماریوں کو ڈائیگنوز کر سکیں اور ڈائیگنوز کرنے کے بعد اس کو بہتر طریقے سے اس کا علاج کر سکیں۔ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب نے کہا کہ ورکشاپ کا مقصد نوجوان ڈاکٹرز کو دماغی اور اعصابی امراض کی بروقت تشخیص اور علاج کے جدید رجحانات سے متعارف کروانا ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42۔